Now, next one is other types of stresses. राइट, इसमें पहले पढ़ते हैं हम कंप्लीमेंट्री shear stress. कंप्लीमेंट्री shear stress. सो कंप्लीमेंट्री, पहली बात है कि कंप्लीमेंट्री shear stress क्या चीज है, राइट. पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने ये टॉपिक लिखा अदर टाइप ऑफ स्ट्रेसेस. आपने नॉर्मल स्ट्रेस पढ़ा, आपने shear स्ट्रेस पढ़ा. इस टॉपिक में अभी बेंडिंग स्ट्रेस वगैरह हमने नहीं लिया, टॉर्शन स्ट्रेस नहीं लिया, बट इसमें ये स्ट्रेसेस आपने पढ़े, राइट. तो इसके अलावा देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस आल्सो कंप्लीमेंट्री shear स्ट्रेस. अब ये कंप्लीमेंट्री shear स्ट्रेस क्या चीज है? इट इज डिफाइंड एज, इसका क्या मतलब है कि अगर एक प्लेन के ऊपर एक स्ट्रेस है तो उसका जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा उसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेस एक्ट करेगी, राइट. सो कंप्लीमेंट्री shear स्ट्रेस मींस इट इज डिफाइंड एज, लिखिए, इट इज डिफाइंड एज if there is a stress on one plane, complementary shear stress, it is defined as if there is a stress on one plane, if there is stress on one plane, then there must be equal and opposite shear stress on the other plane, on the perpendicular plane, on the perpendicular. So this is the definition कि अगर एक प्लेन के ऊपर shear stress है, suppose this is your horizontal plane and this is your vertical plane, तो अगर जहां पे एक shear stress है तो जो इसके परपेंडिकुलर प्लेन होगा उसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट shear stress प्रोड्यूस होगी. सो दिस इज योर कंप्लीमेंट्री shear stress. अब ये डिपेंड करता है कि ये क्यों प्रोड्यूस होगी. देखिए, अगर एक प्लेन के ऊपर shear stress है तो उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा उसमें ये shear stress हमें परपेंडिकुलर प्लेन के ऊपर मिलेगी तो उसको हम कंप्लीमेंट्री shear stress कहते हैं. सो ये हमें देखना है कि ये क्यों मिलेगी. दिस वी हैव टू सी, दिस वी हैव टू चेक एंड दिस वी हैव टू फाइंड आउट. तो इसके लिए देखिए कि पहले हम क्या करेंगे, एक क्यूबाइड बॉडी बनाएंगे, राइट. एक क्यूबाइड बॉडी बनाते हैं, देन वी विल स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द थिंग्स. जस्ट वेट. तो इसमें एक क्यूबाइड बॉडी बनाएंगे हम. ये
your x z plane and this is your y z plane, right? So this is your cuboid, right? This is x direction, z direction, and this is y direction. So this is this distance from here to here. You can say this distance is A, right? This distance is your B from here to here. This distance is your B, and from here to here, this distance is your C, right? So ये आपका कौन सा प्लेन है? This is your bijet plane. This is your bijet plane, right? Now, in order to explain the complementary stresses, we will take the bijet plane, right? हम क्या करेंगे? Bijet plane की. तो अगर एक bijet plane के ऊपर ये स्ट्रेस जो है, ये जो डायरेक्शन होगी स्ट्रेस की, ये कौन सी डायरेक्शन होगी? दिस इज टाउ एक्स वाई. ये टाउ एक्स वाई अगर शेयर स्ट्रेस बाइजेट प्लेन के ऊपर इस तरीके से है, तो जो इसके अपोजिट प्लेन होगा, इसके जो आपका क्या होगा? ये आपका टाउ, ये क्या होगा? अपोजिट प्लेन में. दिस इज आल्सो टाउ एक्स वाई. अब देखिए, मैंने I have to consider the bijet plane in order to explain the complementary shear stress. जहां से देखिए, if this shear stress, this is acting in the upward direction, that is tau x by, this is acting in the upward direction in the bijet plane, and this tau x by, this is acting in the downward direction, right? So it means that इस केस में क्या होगा? अगर हम सिग्मा एफ वाई लें, sigma Fy means sum of the vertical forces. Sum of the vertical forces on the bijet plane. तो sigma Fy तो आपका क्या आएगा? 0 आएगा. Because this is upward force. Tau xy, this is downward force. Tau xy. So this is 0. Because this is in order to balance this. In order to balance this force, what I have done, I have taken the other force in the opposite direction on the bijet plane. Same force, tau xy is here, tau xy is here, because in order to balance this force. Now the problem is balance. तो यहां से आप देखते हैं तो बैलेंस हो गया, because sigma fy is equal to 0. तो मुझे बताइए क्या ये बैलेंस होगा? sigma fy तो 0 हो आ गया. What? There is movement also, right? So there is one movement also which is passing through the z axis. तो जेड एक्सिस के थ्रू एक मूवमेंट पास होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये देखिए, ये फोर्स आपकी इस डायरेक्शन में है, इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है. तो मूवमेंट क्या क्रिएट होगा? मूवमेंट जो आपका क्रिएट होगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट होगा अबाउट जेड एक्सिस. अब मुझे बताइए, ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट होगा अबाउट जेड एक्सिस, वेदर इट इज 0? नो, इट इज नॉट 0. You can say whether ये जो मूवमेंट है सिग्मा एंड दिस इज इक्वल टू 0. नो, दिस इज नॉट इक्वल टू 0. इट इज पासिंग थ्रू द जेड एक्सिस, राइट? तो जहां से मूवमेंट जो पास होगा जहां से, तो इसमें क्या होगा? बैलेंस तो हुआ नहीं. सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0. दिस इज ओके, बट देयर इज वन मूवमेंट. सो इन ऑर्डर टू बैलेंस द मूवमेंट, हम क्या करेंगे? In order to balance the movement which is in the anti-clockwise direction, we will try to create the movement in the clockwise direction, right? तो clockwise direction में movement create करने के लिए क्या करेंगे? एक स्ट्रेस होगी आपकी, कौन सी? टाउ वाई एक्स. ये एक्सजेट प्लेन है ना, दिस इज टाउ वाई एक्स, और जे आपका होगा जे टाउ वाई एक्स.
राइट। सो जहां पे हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू बैलेंस द मूवमेंट, हम क्या करेंगे, जो इसका परपेंडिकुलर प्लेन होगा उसके ऊपर हम टाउ वाई एक्स एंड टाउ वाई एक्स दो स्ट्रेसेस लेंगे विच इज इन द अनदर प्लेन, दैट इज द एक्स जेड प्लेन के ऊपर, इन ऑर्डर टू बैलेंस द मूवमेंट। ठीक है, आगे देखिए। तो सो इन ऑर्डर टू बैलेंस द मूवमेंट मैंने क्या किया कि क्या पे लिख लेता हूं मैं, इन ऑर्डर टू बैलेंस द मूवमेंट अबाउट जेड एक्सिस, क्या किया मैंने, आई हैव टेकन द शियर स्ट्रेस, राइट, विच इज परपेंडिकुलर टू द बाह्य प्लेन। सो क्या किया मैंने, आई हैव टेकन द shear stress tau yx on perpendicular plane कौन सा, x z on x z, ठीक है ना। तो x z प्लेन के ऊपर मैंने क्या किया, जो कि इसके परपेंडिकुलर प्लेन था, मैंने एक shear stress ले लिया। तो shear stress किस लिए लिया, इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस मूवमेंट। मैंने जैसे आपको बताया सिग्मा एफ बाई तो 0 होगा, लेकिन जो मूवमेंट आपका पास करेगा थ्रू जेड एक्सिस दैट इज सिग्मा एम जेड 0 नहीं होगा। तो इसको मूवमेंट को बैलेंस करने के लिए, जीरो करने के लिए मैंने क्या किया कि जो इसके परपेंडिकुलर प्लेन था उसके ऊपर मैंने shear stress लिया। तो shear stress इक्वल एंड ऑपोजिट, दैट इज टाउ वाई एक्स एंड टाउ वाई एक्स, राइट। अब देखिए जैसे जे वाला मूवमेंट आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, जे फोर्स और जे फोर्स जो मूवमेंट क्रिएट कर रही थी एंटी क्लॉकवाइज, तो जे फोर्स, ये जो एक्स-जेड प्लेन के ऊपर फोर्स और जे फोर्स, और जे जो फोर्स होगी ये जेड एक्सिस के ऊपर मूवमेंट बनाएगी किसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो जे इसको क्या करेगी, बैलेंस करेगी, राइट। इसको क्या करेगी, बैलेंस करने के लिए जे जो फोर्स होगी ये मूवमेंट क्या करेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएगी, राइट। तो अब हमें क्या करना है कि वी हैव टू कैलकुलेट द मूवमेंट अबाउट द जेड एक्सिस, वी हैव टू कैलकुलेट द मूवमेंट अबाउट जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के ऊपर क्या करो, आप मूवमेंट को कैलकुलेट करो। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, राइट। तो वी हैव टू कैलकुलेट द मूवमेंट अबाउट जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के ऊपर जो मूवमेंट होगा उसको कैलकुलेट करना है। तो उसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम, सो यू कैन से टेक द मूवमेंट्स अबाउट जेड एक्सिस, राइट। अच्छा ये देखिए, ये पहले क्या बात क्या है, ये है आपकी स्ट्रेसेस, ये आपकी फोर्स नहीं है, ये स्ट्रेसेस हैं। तो इसलिए स्ट्रेसेस को पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्ट्रेसेस को क्या करना पड़ेगा, हमें फोर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेसेस शुड बी कन्वर्टेड इनटू फोर्सेस, राइट। तो जैसे ये टाउ एक्स वाई आपका स्ट्रेस है, टाउ एक्स वाई, तो इसका फोर्स करने के लिए क्या करेंगे, स्ट्रेस इनटू एरिया। ये टाउ एक्स वाई ये स्ट्रेस, तो इसका एरिया क्या होगा, बी इंटू सी, बी इंटू सी, राइट। टाउ एक्स वाई बी इंटू सी, एक तो ये आ गया। जो इसका है तो ये क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा, टाउ वाई एक्स इंटू ए इंटू बी, राइट। तो ये दो स्ट्रेसेस को मैंने इसमें कन्वर्ट किया, फोर्स में कन्वर्ट कर लिया। टाउ एक्स वाई इंटू बी इंटू सी, बी इज दिस विड्थ एंड द सी इज द हाइट, and this one tau yx a into v, this is the area,
तो मैंने स्ट्रेसेस को एरिया से मल्टीप्लाई किया, सो दीज आर द फोर्सेस। ये क्या मिल गया, वो फोर्सेस मिल गई इसमें और इसमें, राइट। तो ये हमने फोर्सेस को इसको कन्वर्ट किया, अब आगे लिखिए इसमें। तो हम वी विल टेक द मूवमेंट्स, ठीक है ना, मूवमेंट्स लेंगे हम। इसमें एक चीज देखिए, ये मूवमेंट हो गया इसका टाउ वाई एक्स, ये वाला, दिस इज आल्सो गोइंग टुवर्ड्स द जेड एक्सिस, एंड द मूवमेंट ऑफ दिस फोर्स, इफ वी विल टेक द दिस स्ट्रेस मींस मल्टीप्लाइड बाय b by c, this is become force. So movement of this force and this force which is passing through z axis, you can say this is equal to 0. तो आप कह सकते हैं that moments of tau yx and tau xy which is passing through z axis is equal to 0. इसका मोमेंट क्या होगा, इस फोर्स का जो मोमेंट होगा वो 0 होगा। अब आपके पास ये दो फोर्स बच गई, इसका मोमेंट लेंगे तो इसका मोमेंट क्या आएगा, देखिए टाउ एक्स बाई दिस फोर्स, अब एरिया का में क्या आया b इंटू सी, टाउ एक्स बाई b इंटू सी, ये बन गई फोर्स। तो इसका डिस्टेंस अबाउट जेड एक्सिस कैसे कितना है, आप देखिए यहां से, दिस डिस्टेंस इज a, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, दिस इज मूवमेंट, सो दिस इज इक्वल टू a, दिस इज इक्वल टू, अब ये आ जाइए ऊपर वाली, दैट इज टाउ बाई एक्स इंटू टाउ बाई एक्स। तो एरिया क्या आया था इसका, एरिया आया था a इंटू बी, है ना, a इंटू बी, या एरिया। अब जस्ट सी द डिस्टेंस ऑफ दिस फोर्स, जहां से इस फोर्स का डिस्टेंस इधर से लेके इधर तक कितना है, द डिस्टेंस ऑफ दिस फोर्स इज इक्वल टू सी, जो जहां से जहां तक जो अबाउट द जेड एक्सिस जो डिस्टेंस होगा वो कितना है, सी, राइट। तो ये क्या है, आपस में बराबर, राइट। सो दिस इज इक्वल टू दिस, समझ आ गया ये बात। This movement of this force, this is anti-clockwise direction and this is clockwise direction. So I have put the equal sign here. You understand that why I have put the equal sign here? If you would take the movement of tau x by about z axis, this is anti-clockwise direction, and if you will take the movement of tau yx in z direction, this is clockwise direction. So both are equal. अब देखिए BCA, ABC, this is cancelled. So hence you are seeing that tau x y, this is equal to tau y x, right? This is proved. Tau x by this is equal to tau y x. This is your complementary shear stress. Tau x by this is the perpendicular, right? This is the perpendicular face. And tau yx, this is the parallel phase. तो जहां पे जो डेफिनेशन थी वो क्या थी कि if there is a stress on horizontal face, or you can say one face, if there is a stress, तो उसका जो perpendicular face होगा, जब perpendicular plane होगा, उसके ऊपर equal and opposite shear stress होगी. So this is proved, यही हम चीज प्रूव करना चाहते हैं। आप देखिए पीछे चले जाइए, आप जो हमने स्ट्रेस टेंसर में वो चीजें प्रूव की थी उसमें देखिए, स्ट्रेस टेंसर में इसको आप नोट कर लीजिए। आई थिंक इट इज क्लियर, ये आपको जो इसकी डेरिवेशन मैंने की ये क्लियर आ गया। ये मैंने सबसे फर्स्ट स्टेप था, स्ट्रेस को मैंने फोर्स में कन्वर्ट किया, फर्स्ट स्टेप। दूसरा, जो मूवमेंट्स आपके थ्रू जेड एक्सिस पास होते हैं वो उसका मूवमेंट तो 0 होगा, तो इसका मूवमेंट और इसका मूवमेंट आपका 0 हो गया। अब हमारे पास बचा जे और जे, इसका मूवमेंट लेना है जेड एक्सिस, वो मैंने लिए मूवमेंट इक्वल टू इसलिए है कि इसका जो मूवमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा,
तो इसको प्रूव कर दिया मैंने, टाउ एक्स बाई दिस इज इक्वल टू टाउ बाई एक्स, राइट। अब देखिए देखिए इसमें कंडीशंस क्या हुई। तो हमने प्रूव किया, तो जहां पे कंप्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस में क्या हुआ कि अगर आपका tau x by does not this is equal to tau by x, right, ये हमने प्रूव किया। सो अगर ये आपका tau x by this is not equal to tau by x means the shear stresses which is on one plane x y plane yz plane and the other one is your this perpendicular plane xz plane, if these are not equal as we have proved here, so you can say that the moment is not equal to 0, if moment is not equal to 0 if they are नॉट इक्वल। अगर ये तो आपस में बराबर नहीं होती तो मुझे बताइए मूवमेंट क्या होता आपका, मूवमेंट आपका जीरो नहीं होता। सो इन ऑर्डर टू जो इसका कंक्लूजन है, सो इन ऑर्डर टू बैलेंस, सो इन ऑर्डर टू बैलेंस द मूवमेंट्स, इन ऑर्डर टू बैलेंस द मूवमेंट tau x by this is equal to tau y x, ये होना चाहिए तभी आपका मूवमेंट जो है बैलेंस होगा। समझ आ गई ये चीज, राइट। तो ये जो हमने पीछे स्ट्रेस टेंसर में हमने जो प्रूव किया था, क्या किया था, जो एक स्ट्रेस टेंसर में ये तीन चीजें हमने प्रूव की थी, कौन सा, ये आया था हमें tau x by this is equal to tau by x, दूसरा था tau by z this is equal to tau z by second tau xz, tau xz is equal to tau zx, और जो थर्ड वन था वो क्या था, tau by z this is equal to tau z by, tau by z, tau by z this is equal to tau by z by, tau by z this is equal to tau z by, tau by z is equal to tau z by। ये जब हमने इसको स्ट्रेस टेंसर निकाला था अकॉर्डिंग टू द मैट्रिक्स 3x3, तो ये चीजें हमने कहा था कि दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड द डायगोनल्स के ऊपर और जो डायगोनल के नीचे स्ट्रेसेस है वो आपस में बराबर है। दिस इज द मिरर इमेज, और ये अब चीज जो है प्रूव हो गई इन ऑर्डर टू बैलेंस द movements, right? So this is all about your complementary stress, right? The next one देखिए कौन सी है, triaxial stress. Next one is triaxial stress. अब देखिए ट्राइएक्सियल स्ट्रेस, जैसे आपको नाम से पता होगा, triaxial stress when the stresses are all in three directions, right? So triaxial stress as its name suggests, triaxial stresses when the stresses are all in three directions,
दैट इज एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। जब तीनों डायरेक्शन में आपकी स्ट्रेसेस होंगी तो वो वाला उस वक्त हमें क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्राई एक्शन स्ट्रेसेस, मींस स्ट्रेसेस दैट इज आर इन थ्री डायरेक्शंस, दिस इज योर ट्राई एक्शन स्ट्रेसेस। तो अब थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया ले लीजिए, वाई एक्शियल स्ट्रेस। सो वाई एक्शियल स्ट्रेस को हम प्लेन स्ट्रेस भी कहते हैं, प्लेन स्ट्रेस। सो दीज आर 4 इन नंबर्स। पहली बात यह है कि इसमें क्या होगा, 4 स्ट्रेसेस होंगी। देयर आर नॉट 6 stresses, there are 4 stresses. So you can say that a stress in one direction, that is negligible, we will not take. So there are 4 stresses, the 4 in number. There are, you can say there are 4 stresses, right? And they can be represented on one plane. इनको हम एक ही प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज जो आपकी एक्स वाई जेड डायरेक्शन की होती है उसके लिए हमें 3 प्लेन चाहिए, बट हियर वी कैन रिप्रेजेंट दिस इन वन प्लेन। सपोज दिस इज योर वन प्लेन, राइट, दिस इज योर वन प्लेन। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो अगर हमने इसको स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करना है तो ये आपका वाई जेड प्लेन होगा, ये आपका आएगा सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स एक्स both are the same thing. Either you can represent sigma xx is equal to sigma x, और जो J वाला स्ट्रेस होगा, J वाला जो स्ट्रेस होगा, ये क्या होगा आपका सिग्मा x बाई टाउ x बाई, ये होगा टाउ x बाई, राइट। तो अगर J वाला प्लेन है, तो J वाला प्लेन है तो इसमें क्या होगा आपका सिग्मा y, राइट, और जो J जो होगा ये होगा टाउ बाई एक्स, राइट। तो ये 4 स्ट्रेसेस आपने देखा कि इन 4 स्ट्रेसेस को हम एक ही प्लेन के ऊपर क्या करते हैं, एक ही प्लेन के ऊपर हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दे आर द 4 स्ट्रेसेस। नाउ अब ये हमें बाई एक्शियल स्ट्रेस हमें कैसे मिलता है, प्लेन स्ट्रेस कैसे मिलता है, देयर आर द 2 कंडीशंस टू गेट द बाई एक्शियल स्ट्रेस और द प्लेन स्ट्रेस। तो फर्स्ट कंडीशन इसमें क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन इसमें होगी कि अगर हमारे पास 3 डायमेंशंस है, कोई बॉडी है 3 डायमेंशंस में है, अगर उसकी एक डायमेंशन जो है एज कंपेयर टू द अदर 2 डायमेंशंस इज वेरी 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 स्मॉल, देन यू कैन से दैट द स्ट्रेस on that dimension which is very very small, that can be taken as negligible. उस वक्त हम उसको क्या करेंगे, उस स्ट्रेस को क्या करेंगे, एक अगर जिस डायरेक्शन में आपका जो बॉडी है उसकी बहुत ज्यादा उसकी डिमेंशन कम है एज कंपेयर टू द अदर 2 dimensions, तो स्ट्रेस ऑन दैट यू कैन से प्लेन और स्ट्रेस ऑन दैट डायरेक्शन दैट कैन बी टेकन एज 0 और negligible. This is the one condition in case of you can say y-axial stresses, or you can say if you will take of the disc. Suppose करो एक सर्कुलर डिस्क ले लेते हैं, तो सर्कुलर डिस्क का जो केस होगा, सो इन केस ऑफ सर्कुलर डिस्क आप कह सकते हैं ये आपका सर्कुलर डिस्क है, दिस इज योर सर्कुलर डिस्क, राइट। तो ये सर्कुलर डिस्क में अगर जो आपकी ये आपकी क्या होगी, ये विड्थ जो आपकी होगी, ये आपकी सपोज करो ये आपका सर्कुलर विड्थ है, दिस इज योर सर्कुलर विड्थ, राइट, दिस इज योर सर्कुलर विड्थ। तो इसमें J डिमेंशन और J डिमेंशन तो आपको पता है कि ये बड़ी है, एंड इफ आई विल कंसीडर द थिकनेस ऑफ दिस thin thickness of this disc, you can say that the thickness of the disc, this is very very small as compared to the other 2 directions. So in this case you can say there is a y-axial stress or the plane stress. This is the one condition to develop the plane stress, right? So J example आपकी थी
फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ द थिन प्लेट, ये आपकी थिन प्लेट है, अगर ये वाली ये आपकी थिकनेस है, दिस इज योर थिकनेस, दिस इज योर thickness, this is your thickness of the plate. So you have seen that the thickness of the plate is very small as compared to the thickness of the plate is very small as compared to the length and you can say height. So thickness, ये आपका thickness है. So thickness is very small as compared to the other two dimensions. So you can say that in the that direction, stress in the that direction or stress in the direction of the thickness, this is equal to 0. So this is one condition of the plane stress and of the biaxial stress. Now the second condition जो होगी इसकी second condition क्या होगी? जो second condition है आपकी, second condition क्या होगी इसकी? Second condition ये होगी कि if we will take the point on the surface of the cross section and we want to calculate the stress of that point. You have seen that if the point is lying on the cross section, suppose this is the cross section of the body and this is the point where I have to calculate the stress, You can find out that the point which is here, it has no resistance, no opposition from the surface, free surface which is up to this point. तो जो एक सरफेस होगा उसकी तरफ से उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, कोई वहां पे क्या होगा, स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होगी. इन केस ऑफ दिस इज द सेकंड कंडीशन आई एम टेलिंग यू दैट इन द क्रॉस सेक्शन इफ यू वांट टू कैलकुलेट द स्ट्रेस on the surface at the point or you can say at the point on the surface of the cross section, you have seen that the point which is lying at the surface of the cross section, it has no resistance from one direction. So you can say the stress will not produce in one direction. So in this case, this is also the condition which is applicable for the biaxial stress or the plate stress. You understand? So again I will repeat it that there are the two conditions for the biaxial stress. One condition is this, that if one of the dimensions, you can say this is very small as compared to the other two dimensions. So in that case also the biaxial stress or the pure stress will develop in this case also. I have just given the example of the thin, you can say thin plate. I have given that example of the thin plate here whose you can say thickness is very small. मैंने एक example दिया, प्लेट लिया है जिसकी थिकनेस बहुत स्मॉल है. तो ऐसे केस में जो आपका थिकनेस डायरेक्शन में होगी तो वहां पे स्ट्रेस की वैल्यू जो होगी वो हम ऑलमोस्ट 0 लेंगे, नेग्लिजिबल लेंगे. सो दिस इज द वन कंडीशन. वन कंडीशन क्या थी? व्हेन द वन डिमेंशन इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द अदर टू डिमेंशंस, दैट इज आल्सो द कंडीशन ऑफ द बायएक्सियल स्ट्रेस और द प्लेन स्ट्रेस. एंड द सेकंड वन आई हैव टेकन द कंडीशन दैट व्हेन you have to calculate the stress at a point on the cross section. जब आपको एक क्रॉस सेक्शन जो भी किसी मेंबर का क्रॉस सेक्शन होगा उसके ऊपर आपने स्ट्रेस को कैलकुलेट करना है और वो पॉइंट आपका सरफेस ऑफ द क्रॉस सेक्शन है, तो उस केस में भी जो आपका सरफेस के ऊपर जो पॉइंट के ऊपर जो सरफेस होगा, एटमॉस्फेयर होगा, जो भी होगा उसकी तरफ से उसको कोई भी रेजिस्टेंस वहां पे नहीं होगा. सो वहां पे क्या होगा, कोई भी स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होगी. तो दैट इज आल्सो द कंडीशन ऑफ द प्लेन स्ट्रेस. ये दो कंडीशन जो प्लेन स्ट्रेस की थी दैट इज कॉल्ड द प्लेन स्ट्रेस और द बायएक्सियल स्ट्रेस. और ये मैंने आपको बताया दी स्ट्रेस आर टोटल 4 इन नंबर्स एंड दे कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन सिंगल प्लेन. इनको हम सिंगल प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट कर देते हैं. सो दिस इज अबाउट योर बायएक्सियल स्ट्रेस, राइट. तो बायएक्सियल स्ट्रेस के बारे में हमने पढ़ा. अब जहां पे इसकी और देयर आर टू मोर टाइप्स ऑफ बायएक्सियल स्ट्रेस कंडीशंस. तो देयर आर कौन सी बायएक्सियल कंडीशंस होंगी? देयर आर टू मोर
y action stress conditions इन केस ऑफ y axis स्ट्रेस। तो कौन सी होगी? एक को हम कहते हैं प्योर स्ट्रेस, प्योर स्ट्रेस। तो एज इट्स नेम सजेस्टेड, प्योर स्ट्रेस मीन कि स्ट्रेस इन प्योर स्ट्रेस क्या होगा? दैट इज स्ट्रेस प्योर स्ट्रेस कंडीशंस होंगी कि स्ट्रेस जो है उसमें क्या होगी? सारे यहां पे टाउ होगा। सो इन द प्योर स्ट्रेस कंडीशन यू कैन से ऑल द स्ट्रेसेस आर shear stresses in the so यह क्या है? when there is only shear stress, है ना, no normal stress। जब सिर्फ shear stress होगी, नॉर्मल स्ट्रेस नहीं होगी, तो ये कौन सी कंडीशन होगी? प्योर स्ट्रेस कंडीशन होगी। ये कौन सी कंडीशन होगी? प्योर स्ट्रेस कंडीशन होगी, राइट। जब आपका, और इसको जैसे टॉर्शन के केस में, टॉर्शन इज द प्योर स्ट्रेस कंडीशन, जैसे ये वाला, सो 2/2, सो दिस इज द प्योर स्ट्रेस कंडीशन। आज फिर से दिस इज कॉल्ड द प्योर शियर स्ट्रेस, दिस इज कॉल्ड द प्योर शियर स्ट्रेस एज इन केस ऑफ टॉर्शन, दिस इज प्योर शियर स्ट्रेस। तो प्योर स्ट्रेस और प्योर शियर स्ट्रेस क्या है? इसको लिख लेते हैं। प्योर शियर स्ट्रेस, प्योर शियर स्ट्रेस इज व्हेन देयर इज ओनली शियर स्ट्रेस, प्योर शियर स्ट्रेस, when there is only shear stress, no normal stress, so that is called the pure shear stress, right। जहां पे सिर्फ आपको क्या होगा? सिर्फ shear stress मिलेगी, जहां पे नॉर्मल स्ट्रेस नहीं होगी। जब ऐसी कंडीशन अराइज होगी तो उसको हम क्या क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द प्योर shear stress। Now the next one is hydrostatic stress। तो नेक्स्ट क्या है आपका? हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस क्या है? When there is only normal stress, no shear stress, only normal stress, no shear stress, and the normal stresses are equal to each other, so that is called the hydrostatic stress। समझाया आपको? तो जहां पे क्या है कि जब सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस होगी, shear स्ट्रेस नहीं होगी, और नॉर्मल स्ट्रेस कौन सी आपस में इक्वल होगी। तो जैसे एक ये क्यूबॉइड बॉडी है, तो अगर मैं ये डिफरेंट ड्रा कर लेता हूं, तो इस केस में जो स्ट्रेस आपकी होगी वो क्या होगी? दिस इज योर क्यूबॉइड बॉडी, राइट। तो ये आपका क्यूबॉइड बॉडी है, तो इसमें जो स्ट्रेस आपकी होगी, ये आपकी स्ट्रेस जो है नॉर्मल है, सिग्मा 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 एंड सिग्मा, ठीक है। तो अगर आपका
इसको अगर हमने रिप्रेजेंट करना है मैट्रिक्स में तो जाएगा सिग्मा 0 0 सिग्मा, राइट। 2/2 मैट्रिक्स नॉर्मल स्ट्रेस, इसमें कोई भी आपका शियर स्ट्रेस नहीं होगा। तो ये जहां पे टेंसाइल लोड है आपका इस केस में, ठीक है। तो अगर 3/3 मैट्रिक्स लेना है इसमें तो 3/3 मैट्रिक्स में आपका आएगा सिग्मा 0 0 0 सिग्मा 0 0 0 सिग्मा। दिस इज 3/3 में, राइट। तो इसमें ये जो टेंशन स्ट्रेस है, टेंशन स्ट्रेस, राइट, टेंशन स्ट्रेस दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेस। ये कंप्रेसिव, अगर कंप्रेसिव वाला केस होगा तो इसमें क्या होगा, सिग्मा 0 0 की जगह माइनस लगेगा। कंप्रेसिव मींस माइनस सिग्मा 0 0 0 माइनस सिग्मा 0 0 0 माइनस सिग्मा। दिस इज all about your hydrostatic stress. So thank you very much. So today I have just taken the other types of the stresses: complementary shear stress, pure shear stress, and then the other two conditions of the shear stress, that is the pure shear stress and the hydrostatic stress. This is all about your today's lecture. So thank you very much.